Okay, so I'm going to start with reinforcement learning. In reinforcement learning, the only difference is that you don't have any rewards or transitions. You're basically, reinforcement learning is known as online learning because you are actively performing some actions, and then you're trying out those actions and then figuring out which is good and which is bad. Meanwhile, in MDP, what you were doing was, it was offline training, and you were thinking, well, you were thinking in such a way that maybe if I have a grid, and if I'm at this state, if I take this policy, then that's the optimal policy. If I take this and something like that, that's not optimal. So you were mostly thinking in MDP. But in reinforcement learning, we will be actually executing those actions, and we will be um, experimenting in real time, which is that, okay, so if I go up, that's good for me, or that's not good for me. So you're actively trying out um, those experiences. Now, in reinforcement learning, it is further categorized in two formats. One is model based and one is model free. So in model based, what you do is, you have only two steps. The first step is, as the name states, you need a model base. ठीक है, तुम्हें model base से होता है. तो step one ये है कि तुम्हें model build करना होगा based on some approximations, some approximate experiences. ठीक है, and so जो step two होगा उसके अंदर you will be solving that MDP. So the way how you actually learn the model is by you count the number of times you've landed on a certain state, which is कौन सी state पे तुम land कर रहे हो. You estimate the value of t. ठीक है, this is by calculating the probability, and then you discover each reward when we experience that state. So we will see what this all of this means. And then step टू is कि जब हमारे पास एक मॉडल क्रिएट हो गया, हमारे पास एक MDP क्रिएट हो गया, जो सप्लाई वैल्यू इटरेशन जैसा हम अप्लाई कर रहे थे. तो हमारे पास ये एग्जांपल है, इसके अंदर हमने पॉलिसी दी हुई है दैट राइट अप, एंड दीज आर द स्टेट्स ए एंड डी. अगेन इसके अंदर वही चीज़ आ जाती है कि देयर इज सम probability कि there is a 0.8 chance that I go straight, there is a 0.1 chance I stray away from it, 0.1 chance that I stray away downwards. But over here, द ओनली डिफरेंस इज़ कि ये जो चीज़ थी MDP में मैं बताई भी थी कि 0.8 दफ़ा तुम स्ट्रेट जाओगे, 0.1 दफ़ा तुम ऊपर जाओगे, 0.1 दफ़ा नीचे जाओगे. बट ये चीज़ अब हमारे पास लॉस्ट हो गई है. वी डोंट नो व्हाट दिस इज़ बेसिकली योर ट्रांजिशन probabilities, right? So from S to A to S bar, this was what was transition probability. We don't have this, so we need to calculate this in a way. ठीक है, तो हमें ये कैसे करेंगे, हम अपने सैम्पल्स लेंगे, एक्सपीरियंसेस लेंगे. तो हमारे पास एक एक्सपीरियंस ये था कि हमने एजेंट फेंका, और वो एजेंट क्या करता है, यहाँ से राइट लेता है विद रिवॉर्ड -1, और फिर यहाँ से वापसी एक और रिवॉर्ड लेता है -1 का. देयर इज़ एन इंटायर क्या कहते हैं लेस के वो क्या एक्शन परफॉर्म करता है हर एक एक्सपीरियंस में. लेकिन मैंने जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी सिर्फ वो मैंने प्लेस की है, बाकी सारी मैंने इरेज कर दी है. ठीक है, just to make my calculation easier. So what I am going to do in this example is going to be, I will look at कितनी दफ़ा एक चीज़ अकर हुई है and the total number of experiences. So अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो BEC, -1 जो है वो दो दफ़ा अकर हुई है आउट ऑफ कितने एक्सपीरियंसेस में से, दो में से. तो मैंने लग रहा है यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी मे बी. वो छोटी सी गलती ये हुई है कि मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. आई फील लाइक एक सेकेंड. या सो मैंने छोटी सी गलती कर दी है. जो डेटा आपके पास रिप्रेजेंट हुआ है ना, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये नहीं है मौजूद. ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा. यहाँ पे फॉर्मूला होगा अकरेंस डिवाइडेड बाय नॉट द टोटल एक्सपीरियंस बट टोटल अकरेंसेस भी आ जाएगा यहाँ पर. सो what I mean by that is you will look at
this thing over here. So B ईस्ट को तुम देखोगे एंड वो देखोगे तुम कितनी दफ़ा आ रहा है. तो इस केस के अंदर तो एक दफ़ा आ रहा है, बल्कि मैं इधर नहीं यहाँ से समझा देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा सही है. तो हमारे पास बी ईस्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर तुमने देखा बी राइट एक दफ़ा, ये देखा दूसरी दफ़ा, और ये से 2 दफ़ा आ रहा है. सो यू वुड डू 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, कि आप देख रहे हो वो एक्शन कितनी दफ़ा परफॉर्म हो रहा है और डिवाइड बाई 2 कर दोगे. अब लेट्स अज्यूम कि हम देखते हैं सी राइट डी, ठीक है. तो सी राइट के अंदर हम जब ये एक्शन परफॉर्म करते हैं सी राइट वाला, तो ये कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 दफ़ा आ रहा है. सो वी वुड पुट डिवाइडेड बाई 4 एंड वी विल सी कि डी पे कितनी दफ़ा आ रहा है. तो डी पे 1 2 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3/4. यही चीज़ मैं यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है. और वो गलती ये थी कि मुझे यहाँ पे ये लिखना चाहिए था कि this should have been not the total occurrences but something similar to I will figure out इसको कैसे सही से लिखना है, ठीक है. बट जस्ट नोट कि ये ऐसे हो रहा था एंड रिवॉर्ड्स भी इसी तरीके से हो रहा है कि कितनी दफ़ा वो इवेंट आया. सो फॉर एग्ज़ाम्पल सी ईस्ट डी था, ये मेरे पास कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 दफ़ा आया. सो नंबर ऑफ़ अकरेंसेस कितने हो गए, 3. उसका रिवॉर्ड कितना था, -1 और उसको तुम एवरेज ले लोगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है. सो ज़्यादातर आप रिवॉर्ड कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हो क्योंकि वही चीज़ एवरेज आउट हो रही होती है, क्योंकि एक ही -1 का रिवॉर्ड है. तो जब भी आप सी से ईस्ट डी पे जाएंगे तो उसका आंसर -1 ही आएगा अनलेस उसका रिवॉर्ड भी वेरिएबल है. सो द रिवॉर्ड मोस्टली डजंट चेंजेस. एंड देन वंस यू हैव बेसिकली क्रिएटेड योर MDP, बिकॉज MDP इस तरीके से क्रिएट हो गया कि आपको ये पता चल गया है कि ये आपके पास क्या आ गई, आपके पास ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटीज़ आ गई. ये कैलकुलेट सही हुआ है, बस इसकी वर्किंग थोड़ी सी गलत है. यहाँ पे 2 ये 2 आएगा, बट ओवरऑल दीज वैल्यूज़ आर करेक्ट. सो यहाँ पे तुम्हारे पास ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं. एंड टेक्निकली व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि यहाँ पर इफ़ यू स्टार्ट एट स्टेट B and if I take my action east, so I will end up at a Q state, and then from that Q state I will go to where C with the probability of 1. So मेरे पास मॉडल क्रिएट हो गया और मुझे रिवॉर्ड भी पता चल गया कि मेरा एवरेज रिवॉर्ड क्या हो सकता है. तो अब मेरा काम क्या रह गया, सिर्फ वैल्यू इटरेशन लगाऊँ और मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ, सही है. सो दैट वाज मॉडल बेस. कि आप क्या कर रहे होते हो, आप कोशिश ये करते हो कि आप एक मॉडल क्रिएट करो और उस मॉडल पे फिर आप वैल्यू इटरेशन लगा लो एंड यू कैन सॉल्व इट. नाउ normally we are not applying model based approach और model free approach जो है, it's some cases में model based अच्छी होती है, some cases में model free अच्छी होती है. So it's a debate as to where model based would work and model free would occur. I would need to do more research as to where you should apply model based and where you should apply model free. So I'm not sure कि उसके advantages और disadvantages क्या हैं, but this was the process. Now let's look at model free. Now ऊपर मैंने कुछ formulas लिखे हुए हैं, वो picture में तुम देख लेना, but it's mostly not that important. It's just a difference between the formulas with model based and model free. But you need this information first. So model free ये कहता है कि हम model create नहीं करेंगे, ठीक है. एंड मॉडल फ्री के अंदर 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग आती है, पैसिव लर्निंग होती है और हमारे पास एक एक्टिव लर्निंग होती है. जो पैसिव लर्निंग जो होती है उसके अंदर हम क्यू वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है. वी आर एक्चुअली लर्निंग द क्यू वैल्यूज़. यहाँ पे मेरे पास ब्लू मार्कर मिल गया. सो यहाँ पर हम पे वी वैल्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पर वैल्यू लर्निंग कर रहे होते हैं, और एक्टिव लर्निंग के अंदर हम क्यू स्टेट्स की लर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. नाउ पैसिव लर्निंग के अंदर वी आर वॉचिंग थिंग्स इन एक्शन एंड वी आर जस्ट एस्टिमेटिंग द वैल्यूज़, ठीक है. हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं,
sorry, we are actually we are actually taking some actions, right? But we're not choosing the actions. So the difference is that जब आपके पास एक स्टेट S आती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पाई आपके पास एक एक्शन A आता है. I think I will cover this in the next video. Yes.